بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کری تو آہستہ آہستہ بہت سارے حضرات اور بہت سارے صحابہ کرام اسلام کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئے، جیسا کہ پچھلے سبق کے اندر بھی اس کو بتلایا تھا۔ اور 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے کر آئے۔ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ابو جہل نے دارالندوہ کے اندر میٹنگ کی اور کہا کہ محمد وہ بہت سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اسلام کے اندر آہستہ آہستہ داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اسی طرح لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے تو ایک بڑا طبقہ اسلام کے اندر وہ داخل ہو جائے گا۔ کوئی ہے ایسا مرد مجاہد جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ان کو قتل کروں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہاں بے شک آپ ہی ان کو قتل کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمیں اس مجلس کے اندر نظر نہیں آتا۔ تو یہ فیصلے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ نکلے۔ جا ہی رہتے اتنے میں ایک صحابی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملے۔ انہوں نے کہا عمر کہاں چل دیے؟ آج کسی کے قتل کا ارادہ نظر آتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میں نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دونوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور لڑنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ان صحابی نے کہا کہ پہلے اپنی بہن کی جگہ خبر لو، تمہارے گھر والے خود اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور تمہارے اپنے وہ خود اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اب اوروں کے در پہ، یعنی گویا کہ اب اپنے گھر والوں کو تو نہیں روک پائے اسلام میں داخل ہونے سے، اب اوروں کو کیا روک سکتے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل آگ بگولا ہو گئے اور بہت زیادہ غصے کے اندر بھر گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے بھی بہت زیادہ غصے والے تھے۔ لیکن جب سنا کہ ان کی بہن وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئی تو اور زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے کے اندر آ گئے، اور پھر اللہ کے رسول کی طرف سے منہ موڑ کر اپنی بہن کے گھر چلے گئے، کیونکہ اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا، ان صحابی کے بتانے سے پہلے معلوم نہیں، کیونکہ جو بھی اس سے پہلے اسلام لے کر آتا تھا وہ چپکے اسلام کے سارے عمل کرتا تھا، کسی بھی ظاہر ہونے نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ اپنے باپ بیٹوں پہ بھی کوئی آدمی اسلام کو ظاہر ہونے نہیں دیتا تھا، اور نہ اپنے بھائی پر، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا بیوی شوہر پر اور شوہر بیوی پر اسلام کو ظاہر نہیں کرتی تھی اس وقت، کیونکہ ابھی مخفی طور پر اسلام کی دعوت چل رہی تھی اور مخفی طور پر ہی اسلام کے اندر تمام حضرات داخل ہو رہے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ اندر پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوں ہی ہیں، اور یہ صحابی عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، حضرت فاطمہ فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، وہ اور ان کے شوہر سعید بن زید، ان کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھا رہے تھے اور اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کے احکام سکھا رہے تھے اور قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ پڑھنے کی آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوئی اور سنائی دی۔ تو کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے سنا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، تو جلدی میں ہڑبڑاہٹ سے خباب رضی اللہ عنہ کو وہاں چھپا دیا، اور جو صحیفہ تھا اس کو کوئی پیج، کوئی ورق وہیں رہ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے، کہا بھائی گھر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اتنی دیر میں کس طرح دروازہ کھولا، کیوں اتنی دیر لگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں تم اپنے جان کے دشمن ہو گئے ہو، تم نے کیا اسلام قبول کر لیا ہے؟ کیا تم اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہو؟
और फातिमा ने जो है गोल मोल बात की, कहा अगर वो हक है तो जो है हो सकता है। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु गुस्से में आ गए और जो है अपने बहनों जो है सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु को जो है बहुत ज्यादा मारने लगे, खून में लथपथ हो गए। इसी तरह जब बहन बचाने आई तो बहन को भी जो है इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उनके भी खून जारी हो गया। तो आखिर वो भी उमर की बहन थी, उन्होंने कहा कि उमर क्या हमें इसलिए मारा जाता है कि हम ईमान ले आए, हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, तो जो चाहे तुझसे वो कर ले, हम जो इस्लाम से नहीं फिरेंगे, इस्लाम हमारे दिल से जो है नहीं निकल सकता। क्योंकि बहनों को मारने की वजह से, बहन के जो है इस तरह खून में लथपथ हो जाने की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो गया और कहा अच्छा चलो जो तुम पढ़ रहे हो, जिस वजह से तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो, मुझे दिखाओ, मैं देखूंगा कि है क्या चीज वो, कि जिस चीज ने जो है बहन को भाई के खिलाफ कर दिया और जो है हर तरह की मशक्कत बर्दाश्त जो है कर रहे हैं, वो क्या चीज है, क्या जो उसके अंदर खूबसूरती है, क्या उसके अंदर जो है ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो है जो भी इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहा हो अपने जान की परवाह करे बगैर जो है वो इस्लाम से निकलना नहीं चाह रहा। तो बहन ने कहा नहीं, आप जो है नापाक आके आप पहले गुस्ल करके आए और जो है फिर हम आपको जो है वो सहीफा दे सकते हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है गए, गुस्ल किया, बाहर आए, उन्होंने कहा भाई लाओ हमें जो है दिखाओ। उन्होंने वो सहीफा दिया जिसमें सूरह मरियम की चंद आयतें लिखी हुई थी। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को आयतें पढ़ना था कि एकदम दिल बदल गया और कहा कि जब तुम अपने इस्लाम के अंदर दाखिल करते हो तो किस तरह इस्लाम के अंदर दाखिल करते हो, चलो मुझे भी जो है मोहम्मद के पास ले चलो। इतने खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु जो छुपे हुए थे वो निकले और कहा कि उमर जो है आपको खुशखबरी सुनाऊं कि कल जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जुमेरात के दिन और जुमेरात की रात में अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी कि अल्लाह तो जो है अबू जहल या जो है उमर, अबू जहल का नाम भी जो है अमर है, अमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब के अंदर से जो तुझे पसंद हो उसके जरिए इस्लाम को तरक्की अता फरमा। और वो दुआ जो है आपके हक में कबूल हो गई। उसके बाद जो है हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है लेकर दार रकम पहुंचे, जहाँ बतलाया था पिछले सबक के अंदर कि दार रकम के अंदर ही जो है सारे अमाल मुसलमानों के हुआ करते थे। दार रकम पहुंचे, दार रकम पहुंचने के बाद जो है वहां पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार लिए हुए आए तो तमाम सहाबा किराम डर गए पहले और कहा कि या रसूलल्लाह के क्या मामला है, हम इनसे निपटे। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, इन्हें आने दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा या रसूलल्लाह मुझे जो है इस्लाम के अंदर दाखिल कर लें। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम के अंदर दाखिल होना था, तो ये गोया कि इस्लाम के लिए एक बड़ी जीत भी थी। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है खाने काबे के अंदर गए, अपने इस्लाम का जो है ऐलान किया और तमाम सहाबा किराम जो है उसके बाद फिर खाने काबे के अंदर खुलकर नमाज पढ़ने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले जो है छुप कर दार रकम में नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लेकर आए तो खाने काबे के अंदर फिर जो है मुसलमान खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ने लगे। हालांकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े बहादुर थे, लेकिन वहाँ जो है हजारों का मजमा था, कुफार को पूरा का पूरा जो है मक्का इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ था। तो अकेला आदमी जो पूरे शहर का पूरे कुफार का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ जो है मुसलमान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान के बाद खुलकर जो है अपनी इबादत करने लगे। है ना, तो मुख्तसर वाक़यात उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का खत्म होता है। और एक बात ये समझनी चाहिए कि जिस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बहन के घर गए तो बहन और बहनों जो कुरान करीम पढ़ रहे थे और इस्लाम का अहकाम उनको सिखाए जा रहे थे, तो गोया कि इससे घर की तालीम का सबूत भी मिलता है। हमारे दावत का काम है माशाल्लाह, उसमें कहा जाता है घर के अंदर जो है तालीम की जाए, तालीम शुरू की जाए और तालीम की जाए, तो उसका सबूत जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का जो वाक़या है और जो उनके बहन और बहनों घर के अंदर तालीम इस्लाम की कर रहे थे, तो उसी से जो है इस चीज़ का सबूत भी मिलता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को अपने घर के अंदर जो है इस्लाम की तालीम करनी चाहिए। बहरहाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तक तमाम खुलफा राशिदीन, जो चारों खुलफा राशिदीन हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु,
ये चारों खुलाफा राशिदीन जो बाद में बने हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तक जो है इस्लाम के अंदर शामिल हो गए, यानी शुरू में इस्लाम के अंदर शामिल हो गए। 3 तो बिल्कुल शुरू वाले दिन हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले जो है इस्लाम के अंदर शामिल हुए, वाक़या जो है आपको बतला दिया गया। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तो इस्लाम के अंदर शामिल हुए और बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी दलील के जो है फौरन जो है इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, तो जो है अबू बकर भी शामिल हो गए। उसके बाद ही जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर ने दावत दी और वो भी इस्लाम के अंदर शामिल हो गए। और इस वक्त जब 40 नंबर पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, उस वक्त चारों खुलाफा राशिदीन जो है इस्लाम के अंदर शामिल हो गए। और इसी तरह जो है तकरीबन जितने भी अशरा मुबश्शिरा हैं वो भी इस वक्त तक इस्लाम के अंदर शामिल हो चुके थे। तो जो शुरू में ईमान लेकर आए उनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इन इनामात से जो उनको जो है नवाजा। खुलाफा राशिदीन के अंदर हो या जो है अशरा मुबश्शिरा के अंदर हो, अशरा मुबश्शिरा के अंदर कोई ऐसा साहबी नहीं है तो बाद में चलकर जो है ईमान में जो शामिल हुआ हो और जो है अशरा मुबश्शिरा का लक़ब उसको मिल गया हो, नहीं। तो शुरू में जो है ईमान लेकर आए तो बड़ी कुर्बानियाँ, बड़े मुजाहिदे, बड़े जो है हालात से वो गुजरे हैं। तो इसलिए जितनी ज़्यादा कुर्बानी कोई जिस काम के लिए देगा, जितनी मेहनत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस काम के अंदर उसको जो है आगे बढ़ा देंगे।